Hello, my dear students. I once again welcome you all to my study channel. This is your teacher Anupama Rani Singh from Commerce Department of Arihant Arts, Commerce and Science, Junior College, Bavdhan, Pune. I am here to teach topics from Standard 12th Commerce and my subject is Secretarial Practice. Today I am going to start a new chapter, that is chapter number 3, issue of shares. It means giving of shares by the company. So when company gives shares to the public, it's called as issuing shares. Let's see the today's content part. What will be there in today's session? The first thing will be there is classification of share capital. The second thing would be issue of shares, and the third one is based on methods of issue of shares. So let's start with the introduction part. Now in the chapter 2, you studied about the different sources of finance that a company can use to raise funds. हमने पिछले चैप्टर्स में देखा था कि जहाँ पर कंपनी अलग अलग सोर्सेज के ज़रिए फाइनेंस रेज करती है, कलेक्ट करती है, सो दैट दे कैन यूज़ द फंड्स इन देयर different kinds of business activities. The capital structure of a company consists of its owned funds and borrowed funds. Company का जो capital structure है, it is actually divided into two types. That is the owned funds, company के खुद के जो funds हैं, and company जो funds borrow करती है, company जो बाहर से पैसा उधार लेती है. The owned funds are made up of equity shares, preference shares and retained earnings. जब हम बात करते हैं owned funds की, तो they are actually comprises of equity, preference and retained earnings. ये तीनों चीज़ें मिलकर कंपनी के owned funds तैयार होते हैं. A company limited by shares raises share capital by issuing shares. सो कंपनी जो शेयर्स से ज़्यादा चलती है, ज़्यादा फंक्शन करती है, दोज कंपनीज जनरली कलेक्ट शेयर कैपिटल बाय इशूइंग शेयर्स. नाउ एज आई हैव टोल्ड यू अबाउट शेयर कैपिटल, मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल, कई बार मैंने आप लोगों को इसका मतलब बताया है. सो शेयर कैपिटल मीन्स व्हेन द कंपनी इश्यू शेयर्स टू द पब्लिक. जब कंपनी लोगों को शेयर्स बेचती है या देती है, तो उससे जो पैसा कंपनी में आता है, दैट पैसा इज कॉल्ड एज शेयर कैपिटल. सो द कैपिटल विच इज कलेक्टेड बाय द कंपनी बाय गिविंग शेयर्स टू द पब्लिक इज कॉल्ड एज शेयर कैपिटल. लेट्स मूव फर्दर टू द नेक्स्ट पार्ट इज इश्यू ऑफ शेयर्स. अब कंपनी शेयर्स इश्यू कैसे करती है, दैट वी विल सी इन दिस स्लाइड. A company may need capital to start a new project or to expand or diversify its existing business or to repay its old debts. कोई भी कंपनी जिसको पैसों की ज़रूरत है, तो उसको पैसों की ज़रूरत काफ़ी अलग अलग चीज़ों के लिए हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ कंपनी वॉन्ट्स टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट और वेंचर, कंपनी कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहती है या फिर अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहती है और बढ़ाना चाहती है, विस्तार करना चाहती है, या फिर अपने बिजनेस को, अपने एग्जिस्टिंग एट प्रेजेंट बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना चाहती है. इट मीन्स टू ओपन सो मेनी ब्रांचेस, या फिर कंपनी अपने कुछ पुराने डेब्ट्स रीपे करना चाहती है, पुराने कुछ उधारों को पूरा करना चाहती है. सो ऑल दीज केसेस company may require funds. The second point says company can raise funds by taking loans or by issuing shares, debentures, bonds, etc. कंपनी अपने पैसों की ज़रूरत को लोन लेकर पूरा कर सकती है, या फिर कंपनी शेयर्स दे सकती है लोगों को, डिबेंचर्स दे सकती है, बॉन्ड्स एंड एट्सेट्रा कैन बी इश्यूड बाय द कंपनी टू द पब्लिक. सो ये सारे तरीके हैं, ये सारे सोर्सेज हैं जहाँ से कंपनी फंड्स बोरो करती है. इन केस अ कंपनी वांट्स टू रेज कैपिटल बाय सेलिंग शेयर्स, इट कैन इश्यू. अगर कंपनी कैपिटल रेज करना चाहती है लेकिन शेयर्स को सेल करने के माध्यम से, सो ऐसे केस में कंपनी को कुछ शेयर्स इश्यू करने पड़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल, कंपनी कैन इश्यू प्रेफरेंस शेयर्स
and company can also issue equity shares or ordinary shares. These two topics we have already covered in our previous chapter, in our chapter number 2. हमने ये दोनों टॉपिक्स अपने thoroughly क्लियर किए हैं और कवर भी किए हैं. So I hope there would be no problem for you all to understand these topics. Let's move further. Now this is the important topic here. It's methods of issue of shares. अभी हमने पिछले चैप्टर में जो पढ़ा था, हमने शेयर्स के टाइप्स पढ़े थे. दैट देर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी एंड प्रेफरेंस. हमने उनकी खास बातें पढ़ी, व्हाट वर देयर फीचर्स. देन हमने शेयर होल्डर्स के बारे में पढ़ा, डिबेंचर्स के बारे में पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी. सो देयर वी वर एक्चुअली स्टडिंग अबाउट द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर्स. बट इन दिस चैप्टर वी विल अंडरस्टैंड द मेथड्स. वो कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिनके ज़रिए कंपनी एक्चुअल में शेयर्स इश्यू करती है नॉर्मल पब्लिक को. सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मेथड्स. कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से वेज हैं जिनको अपनाकर कंपनी पब्लिक को शेयर्स इश्यू करती है. Now these are the methods of issue of shares. Now in this chart you can see there are 4 methods of issue of shares. A, B, C, D. The A part is public offer. So जब कंपनी पब्लिक को शेयर्स ऑफर करती है, it means when company offers shares to the normal public, that is the first method of giving shares to the public. The second method of issuing share is when company issue shares to its existing equity shareholders. The third part is existing employees. जो लोग भी at present कंपनी के employees हैं, कर्मचारी हैं, कंपनी उनको भी shares देती है. So again this was the third method. And come to the last method is private placement. कंपनी प्राइवेट तरीके से भी शेयर्स को इश्यू करती है. सो दीज आर बेसिकली द 4 मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स. अब इन 4 मेथड्स के अंदर भी 2-2, 3-3 टाइप्स हैं. द फर्स्ट पब्लिक ऑफर के अंदर आते हैं 2 मेथड्स. द फर्स्ट वन इज IPO and the other one is FPO. You will come to see the full form of these 2 things, IPO and FPO, in the further slides. IPO is also called as initial public offer. FPO is also called as further public offer. So these 2 concepts are related to the public offer. Come to the second, existing equity shareholders. Now again, these are divided into 2 types. The first one is right issue, means issue of right shares to the existing equity shareholder. द अदर वन इज बोनस इशू, जहाँ पर कंपनी बोनस शेयर्स अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को ऑफर करती है. तो ये आता है बी वाले पार्ट में. कम टू द सी पार्ट, जहाँ पर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ की बात चल रही है. अब यहाँ पर बात चल रही है उन लोगों की जो कंपनी में एक्चुअली काम कर रहे हैं. सो उनके लिए भी बहुत सारे स्कीम्स निकाले जाते हैं, इंट्रोड्यूस किए जाते हैं कंपनी की तरफ से. द फर्स्ट स्कीम इज ESOS, जिसको कहा जाता है एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम. ऐसा ही ESPS भी है, SARS है, एंड द लास्ट इज स्वेट इक्विटी. सो दीज आर द फोर टाइप्स विच कम्स अंडर सी मेथड. जो सी वाला मेथड, वहाँ पर ही 4 टाइप्स आते हैं. एंड कम टू द डी मेथड, प्राइवेट प्लेसमेंट. अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स. कंपनी यहाँ पर राइट इश्यू भी देती है, राइट शेयर्स इश्यू करती है, और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट भी करती है. मीन्स कंपनी इश्यू शेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेफरेंस, प्रायोरिटी. सो जिसे पहले प्रायोरिटी मिल रही है, जिसे पहला अधिकार मिल रहा है, कंपनी उसे सबसे पहले शेयर्स इश्यू करेगी. सो दीज आर बेसिकली द 4 methods of issue of shares. In this video, I am not going to cover all the 4 methods, but we will see the first method, that is public offer, and the types below that is IPO and FPO. Now we will see the methods of issue of shares. The first one is public issue or public offer of shares. By the name itself, you can understand that this issue is related to public.
यहाँ पर बात चल रही है पब्लिक ऑफर की। इसका मतलब कंपनी जब शेयर्स पब्लिक को देती है या पब्लिक को इनवाइट करती है, ऑफर देती है, दैट इज कॉल्ड एज पब्लिक ऑफर ऑफ शेयर्स. So let's see this point in detail. So public issue or offer means offering the shares to the public. Shares public को offer करना. This is the most common methods used by companies. ये वाला मेथड सबसे ज़्यादा कंपनीज की तरफ से इस्तेमाल किया जाता है. द कंपनी इनवाइट्स द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर्स बाय इश्यूइंग प्रॉस्पेक्टस. ऐसे केस में कंपनी पब्लिक को इनवाइट करती है सो दैट दे कैन सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स, सो दैट दे कैन अप्लाई फॉर द शेयर्स. सो कंपनी के शेयर्स अगर खरीदने हैं तो लोगों को उसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, और उसके बदले कंपनी लोगों को प्रॉस्पेक्टस देती है. सो प्रॉस्पेक्टस इज नथिंग बट अबाउट द कंपनी. जैसे कॉलेज में प्रॉस्पेक्टस दिया जाता है तो एडमिशन के वक्त स्टूडेंट्स को पता चलता है कि कॉलेज के बारे में क्या क्या है, व्हाट आर द फैकल्टीज, कौन कौन से कोर्सेज आर ऑफर्ड बाय द कॉलेज. सो एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन डिटेल अबाउट द कॉलेज. दैट इज कॉलेज का प्रॉस्पेक्टस. Here we are talking about company का prospectus, means the details will be regarding about companies. कंपनी का लास्ट ईयर क्या प्रॉफिट था, 3 साल का प्रीवियस ईयर का क्या प्रॉफिट है, व्हाट अबाउट द डिविडेंड गिवन टू द शेयर होल्डर्स. सो एवरीथिंग विल बी मेंशन्ड अबाउट द कंपनी इन कंपनीज प्रॉस्पेक्टस. सो कंपनी पब्लिक को इनवाइट जब करेगी तो उसके बदले में प्रॉस्पेक्टस इशू करेगी. A company can use 2 pricing methods to offer shares to the public. अभी कंपनी 2 तरह के प्राइसिंग मेथड्स का इस्तेमाल कर सकती है. प्राइसिंग मेथड मतलब किस तरह से शेयर्स में पैसा आप लगा सकते हो या शेयर्स की क्या कॉस्ट रहेगी उसके हिसाब से. द फर्स्ट मेथड इज फिक्स्ड प्राइस इश्यू मेथड. इट मीन्स शेयर का प्राइस इज फिक्स्ड, उस हिसाब से लोग अप्लाई करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर्स उनको दिए जाएंगे. लेट्स सी दिस पॉइंट इन डिटेल. अंडर दिस मेथड द कंपनी स्टेट्स इन इट्स प्रॉस्पेक्टस द क्वांटिटी एंड द प्राइस एट विच द शेयर्स आर ऑफर्ड टू द पब्लिक. इस मेथड में कंपनी अपने प्रॉस्पेक्टस में सब कुछ स्टेट करती है. स्टेट मीन्स बताती है कि उनके पास जो शेयर्स है उनकी क्वांटिटी क्या होगी. इसका मतलब कंपनी 100 शेयर्स देने वाली है या 1000 देने वाली है या वैसा. सो व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ द शेयर्स एज वेल एज द प्राइस, और उन शेयर्स की कीमत क्या होगी. सो ये 2 चीज़ें प्रॉस्पेक्टस में कंपनी ऑलरेडी बता कर देती है एंड उसके हिसाब से लोगों को इंफॉर्मेशन मिलती है. The subscribers or investors, they are asked to pay a certain portion of face value of shares or entire issue price along with the application. कंपनी अपने इन्वेस्टर्स या सब्सक्राइबर्स को ये भी बताती है कि you have to pay a certain portion of the face value. Now face value means the actual value of the shares. So कंपनी ये अपने इन्वेस्टर्स को बता कर देती है कि शेयर का जो भी फेस वैल्यू है, या तो आप थोड़ा पोर्शन ऑफ शेयर, थोड़ा पैसा आप शेयर का अभी पे कर दो, या फिर पूरा का पूरा आप अगर चाहो तो एप्लीकेशन मनी के साथ पैसा पे कर सकते हो. बोलने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि एप्लीकेशन ब्लैंक नहीं आना चाहिए. देयर शुड बी सम कॉस्ट ऑफ द शेयर विच इज़ टू बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म. The company comes to know the demand of its shares only after the subscription period ends. कंपनी को सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है. फॉर एग्जाम्पल कि लोगों ने कितना डिमांड किया है शेयर्स के लिए. सो एवरीथिंग अबाउट द शेयर्स कंपनी को पता चल जाता है. लेकिन कब पता चलता है? जब वो सब्सक्रिप्शन पीरियड ख़त्म होता है. सो फॉर एग्जाम्पल कंपनी हैज़ गिवन टाइम ऑफ 5 days टू द पब्लिक सो दैट दे कैन सब्सक्राइब द शेयर्स. कंपनी ने अगर 5 दिन का वक्त दिया है अपने इन्वेस्टर्स को कि 5 दिन तक आप अप्लाई कीजिए, आपके पास जो भी वक्त है उसमें आप जितने शेयर्स अप्लाई कर रहे हैं कीजिए. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 days सब्सक्रिप्शन वाला काम ख़त्म हो गया, टाइम ख़त्म हो गया. यहाँ पर
कंपनी अब एक्चुअली चेक करेगी कि व्हाट इज द एक्चुअल डिमांड ऑफ शेयर्स बाय द इन्वेस्टर्स। उस हिसाब से कंपनी को एक आइडिया मिल जाएगा। नाउ कंपनी कैन इश्यू शेयर्स एट पार और प्रीमियम। नाउ दिस कंसेप्ट एक्सप्लेन्स अबाउट द इश्यू प्राइस। एक होता है फेस वैल्यू, मतलब शेयर का जो एग्जैक्ट वैल्यू है। फॉर एग्जांपल शेयर की वैल्यू है 10 रुपया, तो वो हो गया फेस वैल्यू। एक होता है इश्यू प्राइस। इसका मतलब जो कंपनी जिस रेट पर लोगों को शेयर इशू करती है, द कंपनी इश्यूज शेयर्स एट द पर्टिकुलर प्राइस। दैट पर्टिकुलर इश्यू प्राइस, जिस प्राइस पर शेयर्स आर गिवन बाय द कंपनी, इज कॉल्ड एज इश्यू प्राइस। सो वन इज फेस वैल्यू, द अदर वन इज इश्यू वैल्यू और इश्यू प्राइस। अब अगर शेयर्स पार पर इश्यू हुए हैं, इसका मतलब फेस वैल्यू के बराबर, सो फेस वैल्यू के इक्वल, उसे कहा जाता है पार वैल्यू। इट मीन्स कंपनी हैज इश्यूड द शेयर्स एट द सेम वैल्यू। इफ द वैल्यू ऑफ शेयर इज 10 रुपया एंड कंपनी हैज इश्यूड द शेयर एट द 10 रुपीज, इट मीन्स इट इज पार वैल्यू। एक होता है प्रीमियम वैल्यू, इट मीन्स मोर देन द फेस वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, a share of a company cost ₹10 and company issues the share at ₹15, तो इट मीन्स कंपनी को 5 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है, दैट इज प्रीमियम। वो कंपनी अपने पास नहीं रखती है, बल्कि उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट ओपन करती है, दैट इज कॉल्ड एज सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। वहाँ पर वो 5 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं एंड साथ साथ वो 5 रुपये या वो प्रीमियम का अमाउंट डिविडेंड देने के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। नाउ फिक्स प्राइस मेथड इज यूज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ इश्यूज। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक इशू, राइट इशू, ESOS एक्सेट्रा। ये वाला जो मेथड अभी हमने पढ़ा, ये वाला मेथड हर जगह पर अप्लाई किया जाता है। सो एट द टाइम ऑफ इशूइंग शेयर्स टू द पब्लिक, दिस मेथड इज यूज्ड एवरीवेयर। सो दिस इज अ वेरी कॉमन मेथड विच इज जनरली यूज्ड बाय द कंपनीज। Come to the next method, that is book building method. Now there is one another method that is book building. अब यहाँ पर क्या होता है कि इस मेथड में जो कंपनी है दैट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ शेयर्स, कंपनी शेयर्स डिटरमाइन करती है, फिक्स करती है, और वो प्राइस भी डिसाइड करती है जिस पर शेयर्स विल बी सोल्ड बाय बिडिंग प्रोसेस। यहाँ पर लोगों से बोली लगाने को कहा जाता है, इन्वेस्टर्स को बोली लगाने के लिए कहा जाता है, बिडिंग करने के लिए कहा जाता है। नाउ द कंपनी इश्यूज अ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। यहाँ पर कंपनी एक प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है अपने इन्वेस्टर्स को, which is called as red herring prospectus, and it contains about the price range or price band and asks the investors to bid on it. यहाँ पर कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को इस प्रोस्पेक्टस में प्राइस रेंज दिया जाता है कि कितने प्राइस, कितनी कीमत तक आप लोग अपनी बोली लगा सकते हो, and accordingly investors will bid on it. The C point says the lower end of the price band is called as a floor price. सबसे कम बोली जो लगाएगा उसे कहा जाता है फ्लोर प्राइस, एंड जो सबसे हाईएस्ट एंड की सबसे हाईएस्ट बोली जो लगाते हैं उसे कहा जाता है कैप प्राइस और सीलिंग प्राइस। D point says the final price at which shares are offered to the investors is called as cut-off price. Finally, जिस रेट पर इन्वेस्टर्स को शेयर्स ऑफर किए जाते हैं, that final price is called as cut-off price. Now, investors can bid any number of shares that they are willing to buy at any price within the price band. So, investors जो भी चाहते हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार कितने भी शेयर्स के लिए बिडिंग कर सकते हैं, बोली लगा सकते हैं, लेकिन वो बोली उस पर्टिकुलर प्राइस बैंड के अंदर ही होनी चाहिए, विच इज़ मेंशन्ड इन द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। नाउ बिडिंग विल बी केप्ट ओपन फॉर 5 days, 5 दिन के लिए बिडिंग ओपन रहेगी। द बिड्स अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन मनी इज सबमिटेड टू द लीड मर्चेंट बैंकर्स। बोली के साथ साथ जो एप्लीकेशन मनी है वो सारी चीज़ें सबमिट करनी होती है लीड मर्चेंट बैंकर्स के पास, जिन्हें कहा जाता है बुक रनर्स। सो लीड मर्चेंट बैंकर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज बुक रनर्स हु एंटर्स द बिड्स इन अ बुक, एंड बुक रनर का काम है वो बोलियों को एक पर्टिकुलर बुक में एंटर करते जाना।
आफ्टर बिडिंग इज ओवर कंपनी फिक्सेस कट ऑफ प्राइस। बिडिंग हो जाने के बाद कंपनी एक कट ऑफ प्राइस डिसाइड करती है या फिर फिक्स करती है, which will be based on the highest or the best price at which all shares on offer can be sold. सो ये बिडिंग प्राइस एक फिक्स प्राइस होता है, सबसे या तो हाईएस्ट होगा या तो बेस्ट प्राइस होगा, जिसके हिसाब से शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए जाएंगे. सो कंपनी इश्यूज अ प्रोस्पेक्टस विच कंटेन्स द फाइनल प्राइस. फाइनली कंपनी वो प्रोस्पेक्टस इशू करती है जिसमें फाइनल शेयर का प्राइस मेंशन्ड होता है. सो बुक बिल्डिंग मेथड इज यूज फॉर पब्लिक इश्यू, दैट इज IPO एंड FPO. ये जो बुक बिल्डिंग का मेथड है ये पब्लिक इश्यू के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि IPO के लिए और FPO. IPO इज initial public offer and FPO is further public offer. Now we will see the methods of public offer. अभी कौन कौन से हैं वो public offer के method? The first one is IPO, जिसे कहा जाता है initial public offer, और दूसरा है FPO, जिसे हम कहते हैं further public offer. Initial means at the beginning, शुरुआत में पब्लिक को ऑफर दिया जाने वाला. सो शुरुआत में जब कंपनी लोगों को पहली बार शेयर्स ऑफर करती है, दे आर कॉल्ड एज इनिशियल. और फर्दर मतलब जब आगे जाकर कंपनी को और पैसों की ज़रूरत होती है, सो ऐसे वक्त में भी कंपनी फिर से शेयर्स ऑफर करती है, दैट इज कॉल्ड एज फर्दर पब्लिक ऑफर. नाउ वी विल सी द मेथड्स. सो कंपनी कैन मेक पब्लिक ऑफर थ्रू 2 मेथड्स. हमने अभी पढ़ा देर आर 2 मेथड्स जहाँ पे कंपनी लोगों को ऑफर करती है, इनिशियल पब्लिक, फर्दर पब्लिक ऑफर. Now we will see more about initial public offer. It refers to the process of offering shares of a company to the public for the first time. This is a very important line over here is जब कंपनी पहली बार लोगों को शेयर्स ऑफर करती है तो उसे कहा जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफर. अ न्यू कंपनी और एन एग्जिस्टिंग कंपनी या तो नई हो सकती है या तो फिर ऑलरेडी जो कंपनी एग्जिस्ट करती है, एट प्रेजेंट फंक्शनिंग कर रही है, विच हैड रेज इट्स कैपिटल अर्लियर फ्रॉम प्रमोटर्स. जिस कंपनी ने ऑलरेडी पहले अपने प्रमोटर से पैसा लिया है, रेज किया है, या फिर अदर इन्वेस्टर्स में ऑफर इट्स शेयर्स टू द पब्लिक व्हेन इट्स इन नीड ऑफ फ्रेश फंड्स. या फिर लोग भी, इन्वेस्टर्स भी कंपनी को पैसा ऑफर कर सकते हैं, कैपिटल ऑफर कर सकते हैं, सो दैट वो लोग भी कंपनी को हेल्प कर सके फॉर द फ्रेश फंड्स. द फर्स्ट टाइम द कंपनी ऑफर इट्स शेयर्स टू द पब्लिक इज कॉल्ड एज इनिशियल पब्लिक ऑफर. पहली बार जब कंपनी शेयर्स लोगों को ऑफर करती है तो उसे इनिशियल पब्लिक ऑफर कहा जाता है. बिफोर IPO a company is not a listed company and its shares are privately held. So IPO से पहले कंपनी एक लिस्टेड कंपनी में मानी नहीं जाती है, एंड दैट्स वाई उसके शेयर्स प्राइवेटली अपने पास रखे जाते हैं. बट आफ्टर IPO अ कंपनी बिकम्स अ लिस्टेड कंपनी. IPO के बाद कंपनी एक लिस्टेड कंपनी मानी जाती है और उसके शेयर्स कैन बी ब्रॉट एंड सोल्ड बाय इन्वेस्टर्स इन द ओपन मार्केट. एक बार IPO हो गया किसी कंपनी का तो उसके बाद ओपनली इन्वेस्टर्स शेयर्स खरीद सकते हैं या फिर बेच सकते हैं. अ कंपनी कैन मेक IPO थ्रू फिक्स प्राइस इशू मेथड और बुक बिल्डिंग मेथड. अगर कोई कंपनी IPO देना चाहती है, लोगों को शेयर्स ऑफर करना चाहती है नए नए, तो वो ये दोनों मेथड का इस्तेमाल कर सकती है. जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा, फिक्स प्राइस मेथड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर बुक बिल्डिंग का मेथड भी यूज़ किया जा सकता है, जहाँ पर इन्वेस्टर्स आर इन्वाइटेड टू पुट सम बिड्स, दे आर अलाउड टू मेक सम बिड्स. इन्वेस्टर्स जहाँ पे बोली लगाते हैं. कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द लास्ट, द फर्दर पब्लिक ऑफर, जिसे कहा जाता है फर्दर पब्लिक या फिर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर. So when a company issues shares to the public after an IPO, it is called as a further public offer. So कंपनी जब लोगों को शेयर्स इशू करती है IPO के बाद, इट मीन्स IPO हो चुका, अब आगे जाकर कंपनी wants more capital. In that case, company will issue more shares to the public. So that will be called as the further public offer. Thus, every issue of shares by a listed company after its IPO is called as FPO. So, एक बार IPO हो गया, now company has become a listed company. अब जो भी shares company issue करेगी, that will be considered as FPO, further public offer. FPO leads to an increase in the subscribed capital of a company.
FPO से क्या होता है, कंपनी के कैपिटल में बढ़ोतरी होती है, कंपनी का कैपिटल, कंपनी का पैसा इंक्रीज होता जाता है. सो FPO इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ वेरी गुड. So this was all about the methods of issue of shares, the IPO and FPO. So thanks for watching. We will see more points in the next video. Thank you so much. Have a good day.